night, sir. Sorry, sir. Good afternoon, sir. Tanmay, good afternoon, Mamta, Rana, Srishti. Very good afternoon, one and all here. So I see almost 30, more than 30 students are here. So we shall start our class. So I believe that you have already opened your book. I am going to present my presentation. Okay. So we had started third chapter, I think. Yes. Yes, sir. And that the name of the third chapter was synthetic fiber and plastic. है ना? Yeah. Okay, I am going to present it. What will be the page number? Today Page we number. will What what we will study today. properties of synthetic fiber? Yes, properties of Properties synthetic of fiber. synthetic fiber. Because in the last class we came to know that what are the natural fibers, how we can differentiate between them, how they burn differently as we know, and we are knowing about the two types of fiber, that is natural fiber and man-made fiber. So actually in the last class we came to know the component or the unit structure the fiber made up of. Fibers are actually made up of polymers, and polymers are made up of unit structure called monomers, है ना? So what is fiber? Who will define here? Okay, Soumya Raj. Fibers are chemical substances that are made up of molecules are called polymers. Okay, so fibers are actually chemical substance made up of polymers. Okay, then what is polymer? Who will define what is polymer? A polymer is a very large molecule. It is like a string of Yes, threads. Divyanshi. Instead of its many threads are joined together May I to say? form a long string. Okay, so similarly thousands of small molecules join to form a polymer. So the smaller basic molecule, अब polymer में जो smaller basic molecule है जिसे हम लोग कहते हैं monomer. And we are also knowing कि cotton fibers are formed of cellulose, that is a polymer, है ना? And cellulose polymer में monomer क्या है? Cellulose is a polymer of cotton fiber. दिवांशु रंजन मातो म्यूट करो. Okay, Kusinath, tell me the monomer present in cellulose. Yes, sir. सेलुलोज एक पॉलीमर है, उसमें मोनोमर क्या है? मतलब बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर बनता है, तो सेलुलोज जो पॉलीमर में है उसमें मोनोमर क्या है? Sir, long chain of glucose molecules. यस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज दी मोनोमर. तो अगर हम इस सेलुलोज को पॉलीमर कहेंगे, इफ वी आर सेइंग दिस इज अ सेलुलोज, अगर मान लेते हैं ये सेलुलोज है और जैसे कि सेलुलोज एक पॉलीमर है, सो सेलुलोज मॉलिक्यूल इज अ पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. इसमें छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बहुत लंबा सा चेन है. यहाँ पे बताया गया ना, मैनी बीड्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रिंग. उसी तरह सेलुलोज जो है बना है ग्लूकोज का. Okay, next we came to know about the synthetic fiber. There are two types of synthetic fiber. Raise your hand. Who will tell me that? The types. You have to raise your hand. Okay, Ravi Ranjan. Ravi Ranjan, tell me the two types of synthetic fiber. Regenerated synthetic fiber and true synthetic fiber. Exactly, regenerated synthetic fiber and true synthetic fiber. So synthetic fiber वैसा जो एक तो true है, truly synthetic है, दूसरा जो है regenerated है. Okay, so Khushi Kumari, tell me about the regenerated synthetic fiber. What is the definition of it and what are the example of it? Regenerated synthetic fiber is made from natural materials. Rayon is the one such fiber. It is made by processing cellulose from cotton or wood pulp. Rayon, as the sign of silk, it was the first man-made material that was used to make clothing. Exactly. So rayon is one such fiber, that is a type of regenerated synthetic fiber, and here you just mark that it's a natural material made up
made from natural material. And rayon has the sign of silk. Ronak? Yes, sir. So first man-made material that was used to make clothing, क्या नाम था उसका जो कपड़े के लिए यूज़ किया हमने? First man-made material? Rayon. Yes, exactly, rayon. And rayon have this sign of silk, and it was the first man-made material that was used to make clothing. Okay, now next is true synthetic fiber. Who will tell me about this true synthetic fiber? Raise your hand. I see only 3 hands rising. Yes, 4 now. Only 4 hands in air. So I think only 4 students are knowing the answer. Yeah, there is some more students who can define true synthetic fiber. सिर्फ ये 4 ही डिफाइन कर पाएंगे और कोई नहीं. मुझे लगता है कि क्लास में और भी हैं. यस देवांशु है. यस देवांशु. देवांशु डिफाइन करो. Sir, the true synthetic fibers are made from entirely from chemicals. Yes. Natural materials are not used in making of true synthetic fiber. Nylon is one of the example, and it is obtained from petroleum, which is crude oil. Yes, very good. और कोई who can define true Yes, synthetic sir. fiber? Yes, Kusina. The true synthetic fiber is made entirely from chemicals. Natural materials are not used in making a true synthetic fiber. Nylon fiber is where the first true synthetic fibers to be made. They are made from chemical obtained from petroleum, crude oil. Yes. So actually true synthetic fiber are entirely made of chemicals. No natural material are used. And nylon fiber were the first true synthetic fiber to be made. And they are made from chemicals obtained from petroleum. तो chemicals जो हमें petroleum से obtain होते हैं उससे ये बने होते हैं. Next, properties of synthetic fiber. So here we will talk about the different properties of synthetic fiber as it have strength and elasticity. We have already discussed that कि इसमें strength ज़्यादा होता है ना nylon fabric and elasticity जैसे कि पैरासूट सर आपका साउंड बहुत लो आ रहा. बहुत ज़्यादा लो. No, sir. Okay. So as we are knowing about the parachutes, उसमें नायलॉन का फैब्रिक यूज़ करते हैं ताकि वो फटे नहीं. और इलास्टिसिटी की भी बात कर चुके हैं हम लोग. यहाँ पे एक इलास्टिसिटी पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स. सो वी हैव टू टेक द थ्रेड ऑफ कॉटन. हमें कॉटन का थ्रेड लेना है, ठीक है. नायलॉन का लेना है और क्या है, सिल्क है और Wool है. ऊल है. Wool. तो 4 हो गए ना, 4 थ्रेड्स. एंड सबका साइज़ क्या है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ द थ्रेड? सर 1 मीटर. नो, कहाँ 1 मीटर लिखा? 20 सेंटीमीटर सर. 20 centimeters. 20 सेंटीमीटर ना. ओके, सो वी हैव टेकन 4 थ्रेड्स ऑफ 20 सेंटीमीटर. टाई अ थ्रेड टू द फिक्स पॉइंट एंड अटैच अ मास्क हैंगर. ये देखो मास्क हैंगर में बांध देना है. बांध दिए ना चारों को, देखो बांध पाओगे? मास्क हैंगर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, कार्टून का भी बना सकते हैं. आई एम ऑडिबल टू यू? Sir, you are audible. ऐसे ही किसी भी हैंगर में लटका सकते हैं इसको बांध करके. अब क्या करना है, देखो टाई अ थ्रेड, बांध दिए हैं, फिक्स पॉइंट एंड अटैच अ मास्क हैंगर टू द अदर एंड ऑफ द थ्रेड. ठीक है. नाउ प्लेस अ स्टोन इन द मास्क हैंगर. हमने इसमें एक स्टोन प्लेस कर देना. ये देखो स्टोन दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है, एक वजन Yes, इसमें sir. रख दिया. अब हमें Yes. घर में स्टोन तो मिलेगा नहीं, कुछ भी रख सकते हैं वजन वाला सामान. नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच थ्रेड एंड नोट इट इन द टेबल. अब हमें ये तो अब स्ट्रेच हो गया होगा, खिंचा गया होगा, है ना. तो इसका हम लोग को लेंथ मेज़र कर लेना है. इसका पहले लेंथ क्या था वो लिखना है. ठीक है, कर लोगे? नायलॉन का करना है, कॉटन का भी करना है, ऊल का भी करना है एंड सिल्क का भी. ठीक है. या फिर हम लोग स्कूल में कर सकते थे, अभी स्कूल में होते तो. बट आई डोंट थिंक कि ये कुछ हार्ड है. घर पे भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं, है ना.
कोई सोचेगा सर थ्रेड हमें कहाँ से मिलेगा, बोलो। नायलॉन का थ्रेड, सिल्क का, ऊल का तो मिल जाएगा किसी स्वेटर से सर निकाल के, कपड़ा सर। कॉटन का भी मिल जाएगा, नायलॉन एंड सिल्क से भी मिल जाएगा। हाँ कुछ कोई सर कपड़े होंगे पुराने, सर दुकान में मिलता है सर नायलॉन के नहीं थ्रेड। टेलर के दुकान में भी मिल सकते हैं। हाँ नायलॉन का थ्रेड दुकान में भी मिल जाएगा, वो काफ़ी हार्ड होते, जल्दी टूटते नहीं हाथ से। सर कैंची है ना। हाँ कैंची तो है, कैंची से तो कट ही जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, एक तो स्ट्रेंथ की बात हो गई, दूसरी इलास्टिसिटी की बात हो गई, थर्ड है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी। सो ये मॉइस्चर मुझे लगता है बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक यस जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट और वाटर, तो सिंथेटिक फाइबर जिनमें मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कम है, दे ड्राई ईजिली, काफ़ी आसानी से सूख जाते हैं, एंड आर सूटेबल फॉर वेयर इन रेनी सीजन। Yes, we prefer the synthetic clothes in rainy season. भीगते नहीं हैं होंगे। However, they are not suitable for making a summer wear. गर्मियों में हम लोग वो रेनी कोट तो नहीं पहन सकते। Resistance to biological attack. So synthetic fiber are resistant to insect and fungal attack. So they are also resistant. इसमें ना ही फंगस लगेंगे ना ही इंसेक्ट्स आएंगे, है ना। They do not spoil easily and last longer. जल्दी सड़ते भी नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं, है ना। आई एम ऑडिबल टू यू। नेक्स्ट इज एफिनिटी फॉर डाई। सो सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब स्पेसिफिक डाई, तो इसमें जो भी डाई लगाएंगे ये अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड द डाई डू नॉट फेड अवे इजीली। वाटर डाई, डाई क्या है ना, कलर, कोई भी कलर अगर कर सर देंगे ना, कलर कोई जो भी कलर, कपड़ा उसका कलर हट जाता है उस पे कलर डाल। हाँ तो प्लास्टिक्स में अगर एक बार हम कलर कर दिए तो वो जल्दी हटेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसे, हमें बार बार डाई भी नहीं करना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ एसिड एंड अल्कालीज, अगर एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो भी इस पर कम है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, रेसिस्टेंट है, इसमें काम ही नहीं करेगा एसिड और बेस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट, तो जल्दी जलते भी नहीं है ना। सम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, कुछ तो बहुत आसानी से, नहीं ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, अगर पतले हैं बहुत, so they will catch fire very easily. They are inflammable. On heating, they stick to the body of the person wearing them. So जो पहन के रहते हैं synthetic fibers, वो बॉडी में ही चिपक जाते हैं, and that is why synthetic clothes should not be worn in kitchen. इसलिए किचन में synthetic clothes नहीं पहनने चाहिए, लेबोरेटरीज में भी नहीं, या फिर फायर क्रैकर्स जलाते वक्त भी नहीं, है ना। Okay, so these were the different properties of a synthetic fibers. Now let me know who will tell me the different properties of synthetic fiber. Raise your hand. Two hands always in air, that is Kusinath and Kusi Kumari. तुम्हारे हाथ नहीं दर्द होते? Yes, Paridhi Kumari. Tell me the properties of synthetic fibers. The properties of synthetic fibers: strength of a fiber, Okay. elasticity of fiber, moisture absorbency, resistance to biological attack, affinity for dyes, effect of acid and alkalis. And effect of heat. So you have to tell about the effect of heat, that it is highly, they are inflammable, so we should not wear some synthetic clothes in kitchen. And moisture absorbency, if we talk about that, they do not absorb much sweat and water, so that's why we do not prefer it in the summer season. And they are also resistant from biological attack. Okay, give this answer in the chat box, all of you. The question is there, that is cellulose polymer. Yes, Kusi Kumari is answer. That cellulose polymer is made up of long chain, that is glucose and rayon. Okay, देखता हूँ कौन कौन आंसर किए हैं। Okay, more answer. Mamta also, Ronak, Srishti. Okay, Srishti Sarma, unmute your call. Yes, sir.
Srishti, tell me that what do you know about rayon? रायन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना रायन के बारे में. Yes, sir. क्या था रायन? Rayon is a synthetic fiber made from natural sources Very of regenerated cellulose. yes, it's rayon is a regenerated synthetic fiber that is made from the natural material. है ना सृष्टि? Okay, now let us know some more about rayon. As rayon is a synthetic material that is very useful for us. हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि हम लोग पीछे स्लाइड में ही पढ़े कि रायन हैव द साइन ऑफ सिल्क. सिल्क की तरह साइन है इसका. एंड ये नेचुरल मटेरियल से बनते हैं. ठीक है. एंड नायलॉन बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है, ट्रू सिंथेटिक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स. एंड पॉलिस्टर ने एक्राइलिक के बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहले रायन. सो रायन को कहा जाता है इज़ द फर्स्ट मैन मेड फाइबर. ये पहला मैन मेड फाइबर है. ओके. एंड इट इज़ मेड फ्रॉम वुड और कॉटन पल्प. लकड़ी या फिर कॉटन का जो पल्प है उससे बनता है, छिलका से. वुड पल्प और कॉटन इज़ ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH. केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेस के बारे में. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक सॉल्यूशन है. केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग बेस के बारे में. सो NaOH इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन. इसमें हम लोग ये वुड और कॉटन को, मान लो एक ट्यूब है, ट्यूब में कह रहा हूँ, ये एक कंटेनर है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है. ठीक है. और इसमें वुड पल्प और जो भी कॉटन पल्प है वो हमने डाल दिया इसमें. अब हमने इसे मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया. सॉल्यूशन बनने के बाद इसका कलर कैसा हो गया, कोई बताओ? Louis. येलोइश कलर. तो ये सॉल्यूशन का कलर हो गया येलोइश. नाउ द सॉल्यूशन इज प्रेस्ड थ्रू द प्लेट. अब इस सॉल्यूशन को हम लोग एक प्लेट में ले लिए, प्लेट के अंदर, और उस प्लेट में इस सॉल्यूशन को प्रेस किया गया. ठीक है. वेरी स्मॉल होल्स टू प्रोड्यूस रायन फाइबर. इस प्लेट्स में क्या है ना, छोटे छोटे होल्स हैं. ठीक है. स्मॉल होल्स. रायन फाइबर ये बनेगा. तो ये तो अभी लिक्विड में होगा, है ना, सॉल्यूशन है. तो अब इसे हार्ड करने के लिए इसे एक सॉल्यूशन में डालेंगे. वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक एसिड का सॉल्यूशन में डालेंगे. उस एसिड का नाम क्या है? Citric acid. सल्फ्यूरिक एसिड. क्या नाम है? Sulfuric acid. Yes. Sulfuric acid. सो हम लोग इस सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों डालेंगे, बोलो? Convert solid into liquid into solid. यस, वो जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. ओके. द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न एंड वोवन इनटू क्लोथ्स. तो फिर वो फाइबर को हम लोग यार्न बना लेंगे. यार्न क्या होता है पता है? Sir, thread. थ्रेड. और थ्रेड बन जाएगा. तो वीविंग का प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आता है. ऐसा दिखता है हमें. वैसे भी अगर हम लोग कपड़ा देखेंगे अपना तो ऐसा ही दिखता है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. फिर उसे क्लोथ बना लिया जाएगा वेव करके, है ना. ठीक है. सो रायन इज, समझ में आया रायन कैसे बनता है? एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि रायन इज मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल, स्टिल इट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक, है ना. सिंथेटिक फिर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या, और कौन सा केमिकल यूज़ किया? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड. Sulfuric acid. यस. सो दैट इज़ वाई इसे हम लोग सिंथेटिक कहते हैं. एंड रायन बनाने का प्रोसेस मुझे कौन बताएगा, कैसे बनेगा रायन? ओके. कैपिटल लेटर खुशी कुमारी. Yes, sir.
It is made from wood or cotton pulp. Hmm. Wood pulp or cotton is treated with sodium hydroxide Okay. and alkaline solution to produce a yellowish solution. Hmm. The solution is then pressed through plates with very small holes to produce rayon fibers. The fibers are hardened by passing them into a bath containing sulfuric acid. The fibers are then spun into yarn and woven into cloth. Yes. So rayon is the first man-made fiber and made from wood or cotton pulp. And this wood and cotton pulp treated with sodium hydroxide. So इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन आएगा जिसका कलर होगा येलो, एंड दैट सॉल्यूशन इज देन प्रेस्ड, प्लेट्स में प्रेस करके उसे प्लेट में डाल करके उसे सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है, और उस फाइबर का फिर हम लोग थ्रेड बना करके, ठीक है ना, यूज़ करते हैं। ओके, सो रायन इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कोई बताएगा क्यों इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं हम लोग? हाँ रोहित बोलो, रोहित राज। Because they are shiny and look like the Exactly, silk. exactly. That is the correct answer. Because they have And shine. sir, one reason also, sir, the China is not not share the silk how much than the all country comes and make the rayon. Okay, means China having the patent of silk. Yes, sir. Okay, so that's why they are only producing silk, and if we need silk, we will buy from them, है ना? Yes, sir. So we have option. We have rayon is the best product, and having the sign like silk, and it is cheaper than silk also, है ना? So rayon is highly absorbent. Silk absorb नहीं करेगा कुछ भी, ये absorb भी कर सकता है, soft है, comfortable to wear and easy to dye, इसलिए हम इसे dye भी कर सकते हैं। And rayon fabric are suitable for wear in summer. तो rayon fabrics को हम समर में भी, गर्मियों में भी पहन सकते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट, हमारा पसीना भी ये एब्जॉर्ब करेगा, बट ये सिल्क तो ऐसा नहीं करेगा। सो सिल्क से ज़्यादा बेटर हमारे पास रायन है ना? यूजेस ऑफ रायन की अगर बात करेंगे, सो रायन इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, स्पोर्ट शर्ट्स, स्पोर्ट वेयर, सूट्स एंड टाइज। देखो रायन का क्या क्या यूज़ है। होम फर्निशिंग में हम लोग बेड स्प्रेड्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स, अपहोल्स्ट्री, ये सब लगाते हैं। अपहोल्स्ट्री क्या होता है पता है किसी को? कभी कभी हमारे वो लकड़ी का जो कुर्सी होता है उसमें बीच में हम लोग गद्दा लगवाते हैं, Yes, sir. हाँ वही। सो होम फर्निशिंग में जो क्लोथ्स यूज़ करते हैं वो रायन के हैं। जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, मैन्युफैक्चर ऑफ सर्जिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना? सो रायन काफ़ी यूज़फुल है। एंड हु विल टेल मी अबाउट द यूजेस ऑफ रायन? चलो खुशीनाथ, Yes, sir. यूजेस ऑफ रायन। The uses of rayon are cloths. Rayon is used to make jacket, shirt, sport wear, suits and ties. यस, Home finishing. It is used in home finishing such as bed spread, curtains, blanket, tablecloth, and upholstery. Industrial uses. It is used in the manufacture of surgical and other industrial products. yes. So as we know there are different uses of rayon, and sports wear, स्पोर्ट्स शर्ट्स, सूट, टाई, ये सभी बनते हैं। होम फर्निशिंग में भी बहुत सारे यूज़ हैं, बेड शीट्स भी बनते हैं, कर्टन्स भी, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द नायलॉन। एज वी आर नोइंग अबाउट रायन, रायन इज़ द रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर, है ना? रीजनरेट किया हुआ, और किससे बना है हमें पता है, कैसे बना है हमें पता है रायन के बारे में अच्छे से। क्या कोई ऐसा है जिसे रायन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो जानना चाहे? No, sir. No, sir. सो ऑलमोस्ट हम लोग रायन के बारे में कुछ जान रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है बहुत सारे शर्ट्स हम लोग
रायन के भी यूज़ करते हैं जिसमें साइन है और Yes, कॉटन sir. की तरह है ना। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट द नायलॉन। जिस तरह से रायन इम्पॉर्टेंट है, इसका एक अपना महत्व है, अपना यूज़ है, इम्पोर्टेंस है। वी कैन नॉट डिनाई रायन इन आवर डेली यूज़। लाइक दैट नायलॉन भी कुछ कम नहीं है। सो नायलॉन, यू आर नोइंग अबाउट द नायलॉन दैट कि नायलॉन इज़ कॉल्ड द वंडर पॉलीमर। इसे वंडर पॉलीमर कहा जाता है। रीज़न है, इसका बहुत यूज़ है। अनलाइक रायन, नायलॉन इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल। इसमें हमने कोई भी नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया, ना ही प्लांट का, ना ही एनिमल का। इट इज़ फर्स्ट मैन-मेड फाइबर टू बी इंटायरली मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये पहला मैन-मेड फाइबर है जो पूरा का पूरा केमिकल्स का बना हुआ है ना। इट वॉज Yes. फर्स्ट मार्केटेड इन 1938। 1938 में सबसे पहली बार मार्केट किया गया था, मतलब मार्केट में लाया गया था प्रोडक्ट। और एंड डिराइव इट नेम फ्रॉम, तो नायलॉन इसका जो नाम दिया गया न्यूयॉर्क और लंदन से। देखो नायलॉन का NY जो है, N से न्यू, Y से यॉर्क, NY, और L से लंदन, ON लंदन, है ना। पता चला? Yes. अभी बहुतों को पता ही नहीं Yes, चला, sir. मैं बताता हूँ। यस सर, पता नायलॉन, चला। नायलॉन का N यहाँ से, Y यहाँ से, और लंदन का LON, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, सो इन 1938 नायलॉन जो है वंडर पॉलीमर आया हमारे मार्केट में, हम लोगों के यूज़ में। अभी पता है कि नायलॉन का यूज़ अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, कौन बताओगे? नायलॉन का नायलॉन का नहीं पढ़े थे ना? Sir, rayon का पता है. नहीं नहीं, नायलॉन का, पैरासूट, नायलॉन का तो भी पढ़ना है. पैराग्लाइडिंग में, पैराग्लाइडिंग में कोई कह रहा था पबजी में जो कूदते हैं वो, उसका जो रोप्स बने होते हैं वो किसका है? नायलॉन के? सर पबजी में पैराग्लाइडिंग नहीं, स्काई डाइविंग। अच्छा, स्काई डाइविंग जो भी है, जो प्लेन से कूद जाते हैं उनका पैरासूट खुलता है। वो पैरासूट जो होता है वो वैसे नॉर्मली बहुत लोग जो पैरासूट से कूदते हैं, तो पैरासूट बना हुआ किसका है? कहीं पढ़े हैं हम लोग? Nylon, sir. नायलॉन। नायलॉन। Nylon, sir. Sir, strength of fiber में. स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर Property of synthetic fiber. यहाँ पे ना, यहाँ देखो। First point. Yes, synthetic fiber are strong and do not tear easily in daily use. For example, parachute is made out of woven nylon fabric. अच्छा, which is extremely strong and durable. Ropes are also made of nylon. So nylon इतना important है, इसे हम लोग इसलिए वंडर कहते हैं। एंड ये 1938 में आया, तो पैरासूट वगैरह बनना शुरू हो गया हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटता नहीं। सो नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या पता है? विल टेल मी। यस, साइन, No, sir. चमकीला, चमक है, स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक भी है, मतलब लचीला भी है, हल्का भी है, ज़्यादा भारी नहीं है, लाइट इसलिए कह रहा है, एंड लस्ट्रस, चमकीला भी है। इट इज़ ईजी टू वॉश, काफ़ी आसानी से इसे धो सकते हैं। ड्राइज ईजिली, जल्दी से सूख भी जाता है। एंड रिक्वायर्स नो और लाइट आयरनिंग, सब इसमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये नायलॉन का जो है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। सो नायलॉन के भी क्लोथ्स होते हैं जिसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे टी शर्ट है होते हैं जो प्रेस नहीं करना होता, ऐसे फेंके होते हैं। मॉल में जाते हो ना, तो देखे होगे वहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स वो समेट के नहीं रखे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या होते हैं? नायलॉन के होते हैं। वो उठाओ, वो नॉर्मल हो जाएगा जैसा है, फिर पहनो तो बॉडी के शेप ले लेगा, उसमें दाग वगैरह नहीं पड़ता। ध्यान दियो कभी? यस सर। तो कुछ टी शर्ट्स ऐसे Yes, होते हैं sir. वो नायलॉन के, कुछ कपड़े भी वैसे होते हैं, टेबल क्लोथ्स वगैरह भी बहुत सिल्की होते हैं। ओके, नायलॉन, यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक्स बनाया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ रहे हो ना, कपड़ों का जो इंडस्ट्री उन्हें कहा जाता है। नायलॉन इज़ अ हाई स्ट्रेंथ फाइबर, काफ़ी
काफ़ी स्ट्रेंथ होता है ऐसे कपड़ों में। कुछ कपड़े को ना हाथ से नहीं फाड़ पाओगे, बोलो, है ना ऐसा? What's that? Yes, sir. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं यू कैन नॉट टीयर दैट पेपर विद द हैंड। Yes, sir. सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फिशिंग नेट। अच्छा, फिश का नेट बनता है इसका नायलॉन का। एंड रोप्स, रस्सियाँ, पैरासूट्स, टेंट्स। हैव यू सीन टेंट्स? Yes, sir. सो टेंट्स कितना भी हवा चलता है फटता नहीं है, वाले उड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। वैसे उखड़ेगा नहीं, बहुत अच्छे से बहुत टाइटली उसे ग्राउंडिंग किया हुआ होता है, तो वो नहीं फटता है। और फट जाता है तो बहुत तेज़ हवा भी आती है तो जल्दी वो टेंट उखड़ जाते हैं, बट फटते नहीं। टूथ ब्रशेस एंड मशीन पार्ट्स भी कुछ नायलॉन के बनते हैं। टूथ ब्रश भी हमारा। अच्छा, नायलॉन हैज़ गुड इलास्टिसिटी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, सॉकिंग्स एंड अदर होशू। हजरी समझ रहे हो? Yes, sir. सो सॉक्स भी बनाने में, सॉक्स में हमें दिखता है ना वो इलास्टिसिटी, पहनते हैं तो वो इलास्टिक हो जाता है, फिर खोल देते हैं तो So, घर में भी कुछ हजरीज वगैरह यूज होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नायलॉन। हु विल टेल मी अबाउट दी uses of nylon? Raise your hand. Okay, what happened to Arya Tejaswini and Arya Pandey? They are not raising their hand any day. They used to raise their hand. Sahil Kumar also used to raise their hand पहले. Now I see very less students raises their hand. Okay. This question to Paridhi Kumari. Paridhi, tell me the uses of nylon. Uses of nylon. Nylon is used for making fabrics in the textile industry. Nylon is a high strength fiber. It is used in making fishing nets, ropes, parachutes, tents, toothbrushes, and machine parts. Yes. Nylon has good elasticity. It is used for making socks, stocking, and other hosiery. So now we are knowing about the two important synthetic fiber, that is rayon and nylon. Both are the synthetic fibers, but rayon is a regenerated synthetic fiber and nylon is a क्या है nylon? Synthetic fiber. True synthetic fiber. Okay, so why it is true synthetic fiber? Because it is completely made up of chemical. Entirely made of. Entirely made up of chemical. But what about rayon? Some Natural materials are used. Yes, In natural making of materials are used. Okay. And natural materials में अगर हम पूछेंगे क्या natural material में क्या? Cellulose and wood pulp. Okay, cellulose. Cellulose, pulp and cotton. So that cellulose obtained from where? कहाँ से वो cellulose Pulp obtained किया? and cotton. Okay, Wood pulp and cotton. wood pulps and cotton. Wood pulp and cotton. So what happened to that wood pulp and cotton जो हम लोग obtain किए, उसमें क्या किए तो rayon बन गया? What we have done and how it is Pulp made? is treated with sodium hydroxide and algae solution. hydroxide and alkali solution to produce a yellowish solution. The Okay. solution is then pressed to plates with very small holes to produce rayon fibers. The fibers are hardened by passing them into a bath containing sulfuric acid. The fibers are then spun into a yarn and woven into cloth. Yes, exactly. So that was the process of making rayon. सबसे पहले रायन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका कलर येलो होता है। दैट इज़ प्रेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स में प्रेस करने के बाद उसे डाल दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और उसे फिर से थ्रेड बना करके कपड़े बना लिए जाते हैं, है ना? एज सिंपल एज इट इज़. So as we are knowing that the two synthetic material, in the next class we will be knowing about the polyester and acrylic and then plastic.
है ना, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, फिर यूजेस ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। सो क्या इन्वायरमेंट में हम लोगों ने नुकसान कर दिया, ठीक है, ज़रूरत तो थी हमें प्लास्टिक्स की। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. No, sir. Okay, so any other question than this topic? Anything you want to ask? Yes, because I have 2 minute time, so I can give any questions, any queries if you have. No, sir. No problem. Okay, so I have a problem. What, sir? Actually, What's the? at before this, I used to take class, and many of you participate in giving the answers. Many of you used to write answers in the chat box also. But nowadays, from 1 and 2 class, from last 2 class, I don't see any type of excitement in you. You don't feel much interesting. Why you not just participating? What is the reason for that? Because many of the students used to raise their hand and they used to ask me, sir, may I say this answer? What happened to all of you? I see only less than 30% student raises their hands and says the answer. I know everybody having the potential of saying answer, because each one of you have given answer in the previous classes. Okay, so try to participate in giving answers. Okay, then we will study about the next synthetic fibers in the next class. Bye bye all of you. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Parveen,